Assets is equal to liabilities plus capital. What is given? Started business with cash rupees 1 lakh. 1 lakh rupees cash. Capital 1 lakh. New equation is 1 lakh is equal to 0 plus 1 lakh. Next, goods purchased for cash and credit. Goods means stock. Stock our assets. Goods purchased for cash 20 minus 20 in cash and 20,000 goods purchased. कैश में गुड्स परचेज किया तो उतना ही हमारा कैश कम हो गया और स्टॉक इंक्रीज. Another 30,000 goods purchased on credit. Stock will increase by 30,000 और गुड्स आ गया हमारे पास. पर अब इस बार अमाउंट दिया नहीं हमने. Amount is to be paid in near future. 30,000 increase in liabilities. Remaining is 80,000, 50,000, 30,000 plus 1 lakh. Yes, anything which you want to ask. यहाँ तक एक बार कर लो जल्दी से क्योंकि आने वाला अब अगला वाला पॉइंट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. जल्दी से 1 मिनट में खत्म करो इसको. अब देखो क्या लिखा है. Sold goods for cash costing 10,000 on credit costing 15,000 at profit 20%. सबसे पहले गुड्स कॉस्टिंग 10,000. कॉस्ट से क्या होता है, क्या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉस्ट व्हेन गुड्स आर सोल्ड? माइनस इन स्टॉक 10,000. पहला तो कैश का कर लेंगे. सोल्ड एट प्रॉफिट 20%. 20% of 10,000, it is 2,000 profit. Profit will increase our capital. Then what is selling price? If goods costing 10,000 sold at profit rupees 2,000. Wrong. 10,000 का गुड्स 2,000 प्रॉफिट में बेचना तो ज्यादा भी बेचना पड़ता है. 12,000. Purchase for cash. Then cash will increase by the selling price. एक बार ये क्लियर है क्या 10,000 वाला मैटर? अब एक और लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, वही प्रॉफिट 20%. माइनस 15,000 इन स्टॉक, इसका प्रॉफिट 20%, 3,000
then what is the selling price? 15 plus 3, 18,000, and sold on credit, then he is called debtor. Debtor is 18,000. देखो एक बार ये दोनों क्लियर है क्या? 92,000, 25,000, 18,000, new equation is equal to 30,000 plus 1,05,000. 135, 130. हाँ भाई क्लियर है सबका? Have you completed this question? Everyone? Girls? लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी करो. नेक्स्ट हो गया सबका? ये किया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कहा था करके आना. और गर्ल्स? अरे नहीं किया तो यहाँ करा दूंगा, घबराओ मत. बोलो तो सही कि किया कि नहीं किया. कर लिया. क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 से पहले दो चीजें एक और, जो आप पन्ने छोड़ रखे हैं ना पन्ने वहां पर, मैंने कहा 3-4 पन्ने छोड़ के लिखना रजिस्टर में. यस, राइट डाउन अबाउट द डिस्काउंट. वहां पर एक और लिख लो टर्म डिस्काउंट. राइट डाउन. Discount. Reduction in the selling price is called discount. Reduction in the selling price is called discount. There are two types of discount. First, trade discount. Second, cash discount. One is trade discount, TRADE, trade discount. Second, cash discount. Yes, first write down about the trade discount. It is allowed, trade discount में लिखो, it is allowed at the time of purchase or sale of goods. Purchase or sale of goods.
purchase or sale of goods this discount is allowed to promote the sales and this is not recorded in the books. This is not recorded in the books. This is not recorded in the books. This type of discount is deducted from the selling price. This type of discount is deducted from the selling price. पहले समझना है, deducted from the selling price. Yes, trade discount. It is allowed at the time of transaction. जब भी अपन गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं उस समय उसकी प्राइस में से कम कर देते हैं. सपोज गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, 10% डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% यानी 1,000. तो जब परचेज सेल करते हैं उसी समय ये डिस्काउंट अलाउ होता है. एक बार परचेज हो गया या सेल हो गया उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता. क्या कह रहे हो? ये माइक बंद करो, कौन कर रहा फालतू बातें. दूसरा, why this type of discount is allowed? This type of discount is allowed to promote the sales. हम चाहते हैं कि ज्यादा सेल हो. लिखा होता है ना मार्केट में कई जगह, buy 2 get 1 free, buy 3 get 1 5. ठीक, ये इसका मतलब क्या है कि आप एक शर्ट खरीदने आए हो तो आप एक ही नहीं खरीदो, आप कम से कम 2 खरीदो, और अगर 2 के पैसे दोगे तो एक और फ्री मिल जाएगी. वो जो फ्री वाली है वो डिस्काउंट है, और वो फ्री वाली इसलिए दे रहे हैं ताकि आप एक शर्ट की जगह 2 शर्ट खरीदें, 2 टी शर्ट खरीदें. तो ये जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट, और इसका पर्पस है कि ज्यादा सेल हो. वी वांट टू promote the sales, increase the sales, and this type of discount is not recorded in the books. और इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी इसको अकाउंट्स में लिखते ही नहीं. तो फिर आता है कि फिर इस शो कैसे करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट का अमाउंट उसमें से लेस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 रुपये उसकी प्रिंटेड प्राइस है, 10% कम कर दिया तो बिल कितने का बनेगा? 9,000. 1,000 रुपये कम करके डायरेक्ट बिल बना दिया 9,000 रुपये का. तो अब वो 1,000 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बिल ही 9,000 का बन रहा है. ये ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर है सबका? नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट. Write down about the cash discount. Cash discount. It is allowed at the time of payment made or received. It is allowed at the time of payment received or made. Payment made or received. It is allowed at the time of payment received or made. Payment received or made. जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट यानी पेमेंट लेने और देने के टाइम हम कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं. जैसे उस आदमी से अपन को 9,000 रुपये पे करना है, उसको अभी जिसका अपन ने गुड्स परचेज किया 1,000 रुपये डिस्काउंट पर, तो 9,000 रुपये नेट अमाउंट देना है. अब उसने कह दिया कि अगर ये पैसे 5 दिन में दे दोगे तो मैं 500 रुपये और कम कर दूंगा. तो वो जो 500 रुपये पेमेंट के टाइम कम कर रहा है
वो कहलाएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दैट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और मेड। जब पेमेंट की टाइम आती है, पेमेंट के टाइम में कुछ और डिस्काउंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं पैसे, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ये बात समझ में आई पहले? This discount is allowed. This discount is allowed to recover credit sales as early as possible. This type of discount is allowed to recover credit sales as early as possible. As early as possible. अब इसका पर्पज क्या है? अपन चाहते हैं कि जिसको उधार पे गुड सेल किया उससे पैसा जल्दी आ जाए। पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट टू रिकवर क्रेडिट सेल्स एज अर्ली एज पॉसिबल। उधार पे गुड सेल किया, डर लग रहा पैसा डूब नहीं जाए, तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, भले 200-500 रुपए कम आ जाए, बाकी पैसे तो पूरे आ जाए। तो हम लोग उसको एक लालच और दे देते कि भैया तो परसों तरसों दे देना, तेरे को 500 रुपये और कम देने पड़ेंगे, या एक हफ्ते में पेमेंट कर देगा। तो दिस इज कैश डिस्काउंट। इज इट क्लियर? आगे एक लाइन और। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इस डिस्काउंट की एंट्री करते हैं हम लोग। जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं तो लेजर में अकाउंट खोलते हैं, यानी इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रेट डिस्काउंट तो अपन लेस करके शो कर देते हैं, पर यहां पर इसको लेस करके शो नहीं करते, इसकी तो हम लोग एंट्री करते हैं। क्लियर है बात? अब लिखो एक और टर्म, डेप्रिशिएशन। DEPRECIATION, depreciation. Depreciation. It is an expense. It is an expense reduction in the value of fixed assets. Reduction in the value of fixed assets. Reduction in the value of fixed assets due to wear and tear. Due to wear and tear and obsolete. 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 Wear and tear and obsolete. समझना है। For example, you have purchased Activa scooter for ₹80,000. After 1 month, if you want to sell it back, would you get ₹80,000 back or less than 80,000? Why you are getting less than 80,000? भाई आपको 80,000 रुपए से 80,000 ही क्यों नहीं मिल रहा? 80,000 से कम क्यों दे रहे हैं? आप बेचने जाओगे तो वी हैव यूज्ड, हमने उसको यूज कर लिया। अब यूज कर लिया तो उसके अपन जो खरीदने वाला वो ये मानता है कि इसका टायर घिस गया, वो मानता है कि इसका इंजन घिस गया, वो ये मानता है कि ये अब थोड़ा यूज हो गया इसलिए इसकी वैल्यू कम, तो ये कहलाता है वियर एंड टीयर। अब आता है ऑब्सलीट। इफ यू हैव परचेज्ड ए मोबाइल फॉर ₹30,000 or 40,000 of OnePlus, would you get ₹50,000 after 5 months, 6 months?
अगर एक मोबाइल आपने परचेज किया 50,000 का और 6 महीने बाद वापस बेचने जाओगे तो पूरे पैसे मिल जाएंगे क्या? एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। हाँ भाई मोहन। तो यार आप कर दे अभी, तो वो 11-12 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? तो बस तब तक तो कर ले। तो ऑफिस चल जाए यार, ऑफिस में तो चल जाए। हाँ उठा के ले जा। आज बनाना पड़ेगा। अरे वो बुला लेगा तेरे को, वो आ जाएगा वो तो ऑफिस। पहुंच जा तू तो ऑफिस। तो तू पहले जल्दी पहुंच जा ताकि एडिट करनी है। अब यार ऐसे ही तो है ना फिर, अब यार चल अब ठीक। अरे यहाँ तेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा तो वहां चल जा, वहाँ डायरेक्ट अपनी लाइन है, वहाँ नेट थोड़ा तेज भी चलता है और अपने खुद का नेटवर्क होता है। मैं भी पहुंच रहा हूँ 11 बजे, 10:30, 11 बजे। ठीक है ना? आ जा। यस। मैंने ये कहा था कि मोबाइल अपन परचेज करते हैं मार्केट में, उसका नया वर्जन मार्केट में आ जाता है तो पैसे अपन को उतने ही वापस मिल जाते हैं, या फिर अपना बिकता ही नहीं है, या कम पैसे मिलते हैं। हाँ? तो लोग क्या करते हैं, नया वर्जन खरीदेंगे। जैसे पहले 64 GB उसका, 64 GB उसकी कैपेसिटी थी। अब आ गया 256 GB की कैपेसिटी वाला। तो 64 GB का कम नहीं, कम खरीदेंगे लोग। जब 16 GB का आ रहा था, 64 GB ज्यादा अच्छा था। अब 64 के बाद 256 GB आ गया रैम का, रोम का। जी। रोम उसकी 256 GB हो गई अब। तो नया परचेज करेंगे ना, पुराने की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। भले आपने 40,000 में खरीदा हो 64 GB का। ये कहलाता है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट मीन्स व्हेन न्यू वर्जन हैज कम इनटू द मार्केट, देन ओल्ड वर्जन हैज टू लूज इट्स वैल्यू। इट इज कॉल्ड ऑब्सलीट। इज इट क्लियर? अब कल करेंगे अपन इसका क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी आ रहा है और डिस्काउंट भी आ रहा है। ओके।